The thorn and tendrils of बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी. होमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन. सो यू कैन राइट homology as divergent evolution because same origin but they are developing different functions. Suppose we talk about the बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा, इनमें ये जो थॉर्न यानी कि जो एक्सिलरी बर्ड है दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग इनटू thorn, but here that auxiliary bird is differentiating into tendril. So same origin but they are doing different functions, so it is known as homology. So you can write homology, divergent evolution, as they show same origin and different function, and opposite to that is analogy. Analogy means convergent evolution, as the origins are different but they develop same function, they show same function. और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो है आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस. ये ऑक्टोपस invertebrate, humans they are vertebrates, well developed, photosensitive structures. Both of them are photosensitive structures but their origins are different. So eye of octopus and eye of human, they show different origin but same function, and hence it is called as convergent evolution. Different origin but same function, hence it is known as convergent evolution. So convergent evolution, analogy, different origin, same function, these three concepts should be remembered together. Other examples of analogy are eye of octopus and mammal, and flippers of penguins and dolphins. क्योंकि penguins क्या है, birds, और dolphins mammal है ना. तो penguins और dolphins के जो flippers है they look similar, but these two organisms are different. Penguins are birds and dolphins are mammals. One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms but towards the same function. Sweet potato root modification and potato stem modification is another example for analogy. In the same line of argument, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry. These biochemical similarities point to same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. Man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport, or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding programs has created breeds that differ from other breeds, for example dogs, but still are the same group. It is argued that if within hundreds of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? अगर बढ़ा हुआ दूध देने वाली गाय, ये जैसे कि गिर साहिवाल, ये स्पेसीज ह्यूमन क्रिएटेड हो सकती है कि नहीं, इतना ज़्यादा दूध देने वाली और इतने दिनों तक दूध देने वाली. नॉर्मली एनिमल प्रोड्यूस और फीमेल मैमल प्रोड्यूसेस मिल्क ओनली टू फीड इट्स यंग वन. तो उसका टाइम पीरियड भी कम रहता है, क्वांटिटी भी अपने बच्चे को पिलाने के लिए जितनी चाहिए उतनी ही रहती है. लेकिन इतने ज़्यादा क्वांटिटी में दूध देने वाली गाय, क्योंकि नॉर्मली माँ कितना दूध प्रोड्यूस करेंगी, जितना उसके बच्चे को चाहिए, लेकिन इतने हाई अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करने वाली और इतने दिनों तक मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गाय, ये एक अलग स्पेसीज नहीं है, वो ह्यूमन के नहीं है क्या, ये ह्यूमन ने ही प्रोड्यूस की है ना. यानी इफ़ द ह्यूमन्स और
जो भी एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, ऐसे लोग अगर एक नई प्रजाति तैयार कर सकते हैं तो सालों साल या करोड़ों साल में, सैकड़ों सालों में अगर नेचुरल सिलेक्शन से स्पेसिएशन हो सकता है कि नहीं, अगर नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है तो उससे भी स्पेसिएशन हो सकता है. एंड दैट वाज प्रूव्ड बाय, मैं फिर से एक बार अच्छे से बताती हूँ आपको. इफ़ ह्यूमन्स आर सिलेक्टिंग animals in every generation for a particular character and bringing about only their breeding, then the new species can be created. The similar selection is done by nature. नेचर चेंज हो रहा है तो उस नेचर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अगर अच्छे कैरेक्टर है तो वही ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उनसे भी उस प्रोसेस से भी स्पेसिएशन हो सकता है. यही बताया था डार्विन ने. डार्विन ने क्या बताया कि नेचर इज़ द फोर्स विच ब्रिंग्स अबाउट स्पेसिएशन. कुछ अच्छे कैरेक्टर वाले जो क्रीचर्स है वो वहाँ पे रहने के लिए सिलेक्ट होंगे क्योंकि नेचर उन्हीं को रहने के लिए सपोर्ट कर रहा है. और ऐसे ही क्रीचर्स अगले जनरेशन को जन्म देंगे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स एक नए स्पेसीज का निर्माण होगा. दिस इज़ नोन एज नेचुरल सिलेक्शन बट दिस सिमिलर इज़ डन बाय ह्यूमन बींग्स, सो दैट इज़ एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन. उनको जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स चाहिए उनकी प्रजातियाँ उन्होंने निर्माण की सिलेक्शन करते करते. जैसे हम बोल सकते हैं कि कैटल्स का सिलेक्शन, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया, वैसे ही वेल नोन एग्जाम्पल है मेज़ का कि जो वाइल्ड मेज़ था वो इतने बड़े बड़े दानों का नहीं था लेकिन अब वो इतने बड़े बड़े दानों का है. वैसे ही मस्टर्ड एक छोटे से प्लांट से ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर जैसे अलग अलग स्पेसीज बनी, वो भी एक डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स का सिलेक्शन है. तो इसी को प्रूव करने के लिए पीजन्स का सिलेक्शन करके एक नई प्रजाति को जन्म दिया था डार्विन ने अपनी ही थियोरी को प्रूव करने के लिए. डार्विन प्रूव्ड, लिखिए, डार्विन प्रूव्ड हिज नेचुरल सिलेक्शन थियोरी बाय experimenting on pigeon. He succeeded by experimenting on pigeon. He succeeded in creating new variety of pigeon. He succeeded in creating new variety of pigeon. Other interesting observations supporting evolution by natural selection comes from England. In a collection of moths made in 1850s before the industrialization set in, it was observed. The experiment was actually done by Kettlewell and Kettlewell. लिखिए यहाँ पे ये जो मॉथ का परीक्षण किया था ना, बिस्टन बेटुलारिया एंड बिस्टन कार्बोनारिया, तो ये किया था केटलवेल एंड केटलवेल ने. ये भी नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस को प्रूव करता है. वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पेड़ों के ऊपर ऐसे लाइकेन बढ़ रहे थे जो कि वाइटिश कलर के थे. तो इनमें डार्क कलर की मॉथ अलग से दिख जाती थी जिसको खाया जाता था, और जो फेडेड मॉथ का कलर है वो नहीं दिखता था क्योंकि लाइकेन के ही बीच में वो खुद को छुपा सकता था.
लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ SO2 के कारण लाइकेन कम हो गए, बिकॉज लाइकेन एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर है लाइकेन। तो इन्होंने क्या देखा कि जो डार्क कलर के मॉथ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सिलेक्ट हुए, और जो फेडेड कलर के मॉथ थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले सिलेक्ट हुए बाय नेचर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अलग से दिख रहे हैं, लाइकेन होने के कारण ये डार्क कलर के मॉथ अलग से दिखते थे और वो बर्ड्स उनको खा लेते थे, तो वो ज़्यादातर गायब हो गए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बिस्टन कार्बोनारिया जिससे बोला गया, यानी वो डार्क कलर के थे कोल के जैसे, इसीलिए इनको बिस्टन कार्बोनारिया बोला गया, तो उनका सिलेक्शन हुआ वहाँ पे रहने के लिए। हाँ, तो ये क्या प्रूव करता है कि जहाँ पे जैसी कंडीशन है वहाँ पे रहने के लिए नेचर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है, और वही स्पेशल कैरेक्टर्स पर्टिकुलर स्पेसीज़ के वहाँ पे रहने के लिए जो लायक है उस स्पेसीज़ को अच्छापन देते हैं वहाँ पे रहने के लिए, यानी गुड कैरेक्टर्स देते हैं, तो वही बचेंगे और बाकी जो क्रीचर्स है वो मर जाएंगे। Another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England. In a collection of moth made in 1850s, that is before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged or melanized moths. Melanized यानी डार्क थे ये, इनका नाम भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, यानी वाइट विंग्ड जो थे ना उनका नाम है बिस्टन बेटुलारिया। दिया है, नीचे दिया है बिस्टन बेटुलारिया और बिस्टन कार्बोनारिया, नहीं ना, तो आपको लिखना है बिस्टन बेटुलारिया विथ लाइट कलर एंड बिस्टन कार्बोनारिया विथ डार्क कलर। बिस्टन बेटुलारिया विथ light color and Biston carbonaria with dark color. However, in the collection carried out from the same area, but after industrialization, that is in 1920, there were more dark winged moths in the same area, that is proportion was reversed. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उसका प्रोपोर्शन जो भी पहले वाइट विंग्ड थे वो बहुत ही कम हो गया और डार्क विंग्ड बाद में और बढ़ने लगे। तो ये क्यों हुआ, इसके ऊपर वो सोच रहे थे केटलवेल एंड केटलवेल। तो उन्होंने ये जाना कि नेचर इज़ सपोर्टिंग only such organisms which are fit to live in that particular changing environment. The explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background. During post-industrialization period, the tree trunks became dark due to industrial smoke and soot. Under the conditions, the white-winged moth did not survive due to predators. Dark-winged or melanized moths survived before industrialization set in. Thick growth of almost white colored lichen covered the trees. ये white colored lichen को आप अंडरलाइन कीजिए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि SO2 का पोल्यूशन बढ़ गया जिसके कारण lichen चले गए। In the background of white-winged moths survived, but the dark-colored moth were picked out by predators. Do you know that lichen can be used as industrial pollution indicator? इसे अंडरलाइन करो। They will not grow in areas that are polluted. Hence, moths that were able to camouflage themselves, that is, hide in the background, survived.
This understanding is supported by the fact that in areas where the industrialization did not occur, that is, in rural areas, the count of melanic moths were low. This showed that in a mixed population, those that can better adapt, survive, and increase in population size. Remember that no variant is completely wiped out. ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाँ, कम तो हो गए. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट विंग्ड मॉथ यानी बिस्टन बेटलारिया कम हो गए, लेकिन वाइप आउट हुए क्या? नहीं. No variants will be wiped out. That is again very important sentence. इसे अंडरलाइन करो. Remember that no variant is completely wiped out. क्यों ऐसे होता है? क्योंकि बाद में जाके अगर कंडीशंस चेंज होंगी तो ये कुछ प्रमाण में तो चाहिए कि नहीं, वहाँ पे वो कुछ प्रमाण में खुद को बचा के ही रखते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे लेकिन कुछ प्रमाण में खुद को बचा के रखेंगे. मीन्स वेरिएशंस आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन नेचर. इसे अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखिए आप. मीन्स वेरिएशंस आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग. पूरे के पूरे चले गए क्या? सिर्फ अभी कार्बोनारिया ही है क्या? नहीं, वहाँ पे है बेटिलारिया भी, क्योंकि वेरिएशंस को रखना ही पड़ेगा. अगर वेरिएशंस नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं होगा. या चेंजिंग एटमॉस्फेयर में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद को बचा नहीं सकेंगे. लिखा आपने, हेंस वेरिएशंस आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग. सिमिलरली, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. और ये एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था. एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. दिस वर्ड शुड बी अंडरलाइंड. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ direct process in the sense of determinism. It is stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in organism. Now let us study this particular concept. What do you mean by determinism? आपको लिखना है. यानी इवोल्यूशन जो हो रहा है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है. जहाँ पे अब वेरिएशंस प्रेजेंट है, जो भी वेरिएशन सिलेक्ट होगा वो आगे जाएगा. यानी प्री डिटरमाइंड है क्या बेटा कि इसी को सिलेक्ट. अब इसके बाद जैसे 1850s तक समझिए कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ऐसे डिटरमाइंड था क्या कि बेट्यूलारिया ही सिलेक्ट होगा, उसके बाद कार्बोनारिया सिलेक्ट होगा. किसी भी स्पीसीज़ के लिए ऐसे प्री डिटरमाइंड इवेंट्स होते ही नहीं है. सो इवोल्यूशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिज्म. इवोल्यूशन कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय डिटर्मिनिज्म. देखिए, दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन विच evolution is not a directed process in the sense of determinism. जैसे पिक्चर की स्टोरी पहले लिखी जाती है और उसके बाद डायरेक्शन, जो डायरेक्टर रहता है पिक्चर का, वो डायरेक्शन देता है और उसी प्रकार से कहानी बनती है जो आप देखते हो. आपका लाइफ भी ऐसे ही रहता है क्या? नहीं, आपका लाइफ ऐसे डायरेक्टेड स्टोरी के जैसा नहीं रहता है. या पृथ्वी पे जो जीवन है वो भी प्री डिटरमाइंड नहीं है. क्यों मुझे इतने दिन लग रहे हैं इवोल्यूशन समझाने के लिए? क्योंकि इतने छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको समझने हैं. इन्हीं के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे फिर? सो अगेन रिपीट, द इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस in the sense of determinism. Evolution is not the directed process in the sense of determinism. बोलो, evolution is not a directed process in the sense of determinism. It is not predetermined. It is not directed story.
जैसे जैसे इवोल्यूशन यानी एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे, हैबिटेट चेंजेस हो रहे, वैसे वैसे स्पीसीज़ के अच्छे कैरेक्टर सिलेक्ट होंगे, अच्छे कैरेक्टर दिखाने वाले इंडिविजुअल सिलेक्ट होंगे और वो आगे जाएंगे. सो इट इज़ अ स्टोकिस्टिक प्रोसेस based on chance events. Huh? Stochastic process based on chance events in a nature and transmutation in the organism. Hmm. Random evolving process. लिखो stochastic process, random process and evolving within time. Stochastic का मतलब क्या होता है? Random process evolving within time. तो आप अपने भाषा में फिर से यहाँ पे लिख के रखो कि इवोल्यूशन इज़ नॉट लाइक एनी डायरेक्टेड स्टोरी और प्री डिटरमाइंड. This shows that in a mixed population, those that can better adapt, survive, and increase in population size. थांब आधी लिही है, मग मला तो पॅराचं नाव सांग. तू नको वाचू. हां, पहले लिखो इवोल्यूशन is not a directed story or predetermined event. Directed story or predetermined event. But it is stochastic process which is based on random events so speciation occurs by natural selection within time, within a large span of time. एडाप्टिव रेडिएशन पे हमने पहले ही बात की है, इसलिए आगे चलते हैं. Mutation theory. This theory was proposed by Hugo de Vries. After the rediscovery of Mendel's work, he proposed this theory based on his observations on Oenothera lamarckina. मैंने आपको ये नहीं बताया कि म्यूटेशन के थियोरी के ड्रॉबैक्स क्या है. वैसे म्यूटेशन थियोरी पे हमने पहले ही काम किया है. 99 पेज खोलिए आप स्टेट बोर्ड का. म्यूटेशंस आर लार्ज सडन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन. व्हाट आर the main features of mutation theory that we are studying? Mutations are large, sudden and discontinuous variation. आप discontinuous variation को underline कीजिए और नीचे उसका example लिखिए. Discontinuous variation, mutation dash discontinuous variation dash yellow flowered lily plant shows pink flowers in next generation. It is the example of discontinuous variation. Yellow flowered lily plant shows pink flowers in the next generation. तो इससे हम बोलेंगे कि नहीं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन.
समझ में आ रहा है आप लोगों को कि म्यूटेशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. वर्क ऑन एवरी वर्ड. These changes are inheritable. Why these changes are inheritable? Because they are the changes in genetic material. These changes are inheritable. Dash देके लिखिए. They are changes in genetic material. Hence they are inheritable. They are changes in genetic material. Hence they are inheritable. म्यूटेशंस प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ये तो है ही, क्योंकि म्यूटेशन की थियरी ह्यूगो डिवराइज ने इसीलिए दी, और वो उन्होंने बोला कि जब तक कि म्यूटेशन नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो डार्विन ने बताए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, एंड दे कैन नॉट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर लार्ज चेंजेस इन स्पीसीज एंड स्पेसिएशन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज में इतने छोटे छोटे वेरिएशन काम की चीज़ नहीं है, ऐसे ही ह्यूगो डिवराइज ने बताया था. और उन्होंने बताया कि वहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, उसी को उन्होंने क्या बोला, साल्टेशन बोला. ह्यूगो डिवराइज साल्टेशन, करेक्ट. म्यूटेशन में बी यूजफुल फॉर और हार्मफुल. यूजफुल म्यूटेशंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर. इसका मतलब क्या होता है कि सडन चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन हर बार वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाते. कभी कभी वो म्यूटेशंस निगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहे हैं. यानी फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन ये टर्म्स है उसके लिए. अगर वहाँ पे जिराफ की ही वेरिएबिलिटी में के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो लॉन्ग लेग्ड एंड नेक्ड जिराफ जैसे वहाँ पे धीरे धीरे बन रहे थे, या वेरिएंट वैसे वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन और शॉर्ट जिराफ भी तो बने होंगे ना. म्यूटेशन सिर्फ पॉजिटिव ही डायरेक्शन में जाता है ऐसे किसने बताया? वो निगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है, यानी वो बैड कैरेक्टर्स भी देता है. म्यूटेशन ऑलवेज डू नॉट गो टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, बट इट ऑल्सो go towards negative direction. Means it gives some senseless characters to organisms to live in that particular environment. तो अब ऐसे म्यूटेशन सिलेक्ट नहीं होंगे, जो अच्छे हैं वो सिलेक्ट होंगे. सो म्यूटेशंस brings about changes. Mutations bring about changes, but only good mutations are selected by nature. So the force of natural selection is there. Mutations bring about large changes, but the good mutations or positive mutations will go ahead and negative mutations will be discarded. Positive mutations will go ahead, negative mutations will be discarded. जैसे सोचो कि ह्यूमन बीइंग्स में एक हाथ नेगेटिव म्यूटेशन हुआ, जैसे यहाँ पे रह रहे लेकिन स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है, मेलानिन ही नहीं बन रहा है, तो वो बच्चा बहुत ही पहले यानी रिप्रोडक्शन के पहले अगर वो मर जाता है तो वो म्यूटेशन तो गया ना. ये छोटे बच्चे ही अगर गलत कैरेक्टर दिखाने वाले बिल्कुल छोटे बच्चे अगर मर जाते हैं तो उनका रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, और वो नेक्स्ट जनरेशन में गए नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन में गए नहीं तो वो जो बैड म्यूटेशन है या निगेटिव म्यूटेशन है वो तो चला गया. सो निगेटिव म्यूटेशंस आर डिस्कार्डेड एंड पॉजिटिव म्यूटेशंस विल गो अहेड, बट म्यूटेशंस आर नॉट ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Why the mutation theory is not accepted? Because only mutations cannot do anything, and that mutations do not go ahead many a time if they are only somatic and not genetic. Harmful mutations may persist or get eliminated by nature. Then objections to mutation theory. The large and discontinuous variations observed by Hugo de Vries were actually due to the chromosomal aberrations, whereas
जीन म्यूटेशंस यूजुअली ब्रिंग अबाउट माइनर चेंजेस. हाँ, अब यहाँ पे आपको लिखना है क्रोमोसोमल एबरेशंस डैश चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोमल एबरेशंस डैश चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो ज़्यादातर म्यूटेशन कैसे होते हैं? दे आर क्रोमोसोमल एबरेशन. दे आर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो सोचो, क्रोमोसोम इज हाईली कोइल्ड डीएनए. बोलो मेरे साथ, क्रोमोसोम इज हाईली कोइल्ड डीएनए. अब क्रोमोसोम के नंबर में अगर फ़र्क हो रहा है तो क्या डीएनए कम ज़्यादा हो रहा है? नहीं. क्रोमोसोम के नंबर एटलीस्ट एक सिंगल सेट तो वहाँ पे है कि नहीं? तो क्रोमोसोम के नंबर में अगर ट्राइसोमी वहाँ पे हो रही है तो उतना तो डीएनए है ही ना जो जीने के लिए आवश्यक है. या मोनोसोमी में भी उतना तो डीएनए है वहाँ जो जीने के लिए आवश्यक है. तो इसमें अगर चेंजेस आते हैं तो नहीं, उसके यानी म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंज आना चाहिए. लेकिन क्रोमोसोमल एबरेशंस के कारण डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं. आप वहाँ पे लिखिए जीन म्यूटेशन मीन्स चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. जीन म्यूटेशन मीन्स चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. And chromosomal aberrations means what? Change in structure or number of DNA, number of chromosome. तो ज़्यादातर म्यूटेशन जो हमें लगते हैं वो क्रोमोसोमल एबरेशन है, ऐसे बोलना है. यानी या तो वहाँ पे डिलीशन हो रहा है, या एडिशन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, या ट्रांसलोकेशन हो रहा है. लेकिन ये सभी बातों में डीएनए के सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज हुए. या अगर मोनोसोमी ट्राइसोमी हो रही है तो भी डीएनए का सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज हुआ है. तो लेकिन म्यूटेशन का मतलब क्या है? डीएनए का सीक्वेंस चेंज होना, वो नहीं हो रहा है. इसलिए वो म्यूटेशन की थियरी हम ग्राह्य नहीं पकड़ सकते. रेट ऑफ म्यूटेशन इज़ वेरी स्लो एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड इवोल्यूशन एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस हैव लिटिल सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन एज दे आर क्वाइट अनस्टेबल. यानी एबरेशन से कुछ भी नहीं होगा. डिलीशन, इन्वर्जन, एडिशन, ट्रांसलोकेशन, मोनोसोमी, ट्राइसोमी से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं है. अगले जनरेशन में ठीक भी हो सकता है, ठीक है ना. या फिर जिसमें भी ये दिख रहा है वो रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा. मंगोलॉइड वाले ज़्यादातर रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं. क्लिनेफेल्टर्स वाले, टर्नर वाले रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं, है ना. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं तो अगले जनरेशन में नहीं जाएगा तो ये स्पेसिएशन में कैसे मदद करेगा? नहीं. स्पेसिएशन में वही कैरेक्टर मदद करेगा कि जो अगले जनरेशन में जा रहा है. तो उसका मतलब है कि अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होता है तो ही स्पेसिएशन में म्यूटेशन मदद करेगा. लेकिन ज़्यादातर म्यूटेशन जो देखे गए, जो ह्यूगो डी वेराइज ने स्टडी किए, वो तो क्रोमोसोमल एबरेशन थे, वो म्यूटेशन थे ही नहीं. हेंस द म्यूटेशन थियरी प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेराइज वाज not fully accepted. थोड़ा बहुत acceptance हुआ, it was not fully accepted. Is it clear to all? Let us stop here.